Now, there was a heavy fighting, especially in Moscow, and by December, Bolsheviks controlled the Moscow Petrograd area. So, जो major cities थी, Bolsheviks, they started capturing those areas, and they were winning in all these different major cities of Russia. And just like Petrograd, which was taken first in October Revolution. In similar way, Moscow was taken and other few cities were also taken along with that. So that means that Bolsheviks were coming in power and they were spreading all over in Russia. They were in the power now, and when any government comes in the power, we observe that they start making changes. So जो पहले हमने discuss किया था in the last class, if you remember, April thesis was given by the Lenin. So वो April thesis में he said, उसने suggestion दिया था that banks should be nationalized, war should end, banks should be nationalized, and the land should be distributed among the peasants. So उसी को उसने अब यहाँ पे execute किया after getting the power in Russia, after coming in power in Russia. So Lenin, what are the different? These are the different changes that that Lenin has done in Russia after coming in the power. So provincial government जब हट गई तो ये सारे changes Lenin ने किए. Most industries and banks were nationalized by November 1917. अक्टूबर में रेवोल्यूशन किया था, अक्टूबर एंड में. नवंबर 1917 तक उसने सारे के सारे बैंक्स और मोस्टली मतलब बैंक्स एंड इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया, प्राइवेट प्रॉपर्टी को रिड्यूस किया. लैंड वाज डिक्लेयर्ड एज द सोशल प्रॉपर्टी एंड पेजेंट सीज लैंड्स ऑफ नोबिलिटी. नाउ जो भी, because he gave that in the April thesis also, that the land as the peasants are working over there, so that land should be under the control of the peasants only, not in the hands of the private property owner. So that is the next step which they have taken. He declared that the complete land of Russia is a private property, and whosoever peasants are working there, they have the ownership over there. They are having a common ownership, and they are working, they are collaborating and working over there all together. And जो जितनी भी nobility की land थी, that all was being taken and seized by the peasants. Then partition of large houses according to the family requirement. अब जो बड़े बड़े प्राइवेट ओनर्स के प्रॉपर्टी थी, जो बहुत बड़े बड़े कुछ घर थे, उसको डिवीजन किया गया, वेयर द फैमिली साइज के हिसाब से देख के घरों को डिवाइड किया. बैन द यूज ऑफ ओल्ड टाइटल्स, जो एरिस्टोक्रेसी ऑटोक्रेसी जार के टाइम पे जो टाइटल्स को यूज किया जाता था उसको बैन कर दिया, दैट नो यूजेज ऑफ सच टाइटल्स विल बी देयर एनी मोर. एंड और ये जनरल बात होती है कभी भी. अभी हम देखते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, तो भी हम जब एक रूलिंग पार्टी नई इलेक्ट होकर आती है तो वो इलेक्शन के बाद अपनी पॉलिसीज को फॉरवर्ड करती है. सेम थिंग हैपेंस हियर आल्सो. जो भी रूलर यहाँ पे रूल करने आएगा, दे विल बी पुटिंग फॉरवर्ड देयर ओन पॉलिसीज. So same was happening here also. And new uniforms were designed for the army and officials. और uniforms को उन्होंने यूनिफॉर्म को उन्होंने दोबारा से रीडिजाइन किया. जो पहले आर्मी की यूनिफॉर्म थी उसको चेंज किया गया, ऑफिशियल्स की यूनिफॉर्म को चेंज किया गया. और इसमें वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट दे हैड वन यूनिफॉर्म कंपटीशन आल्सो. जब न्यू यूनिफॉर्म बना दी गई तो उसका कुछ कंपटीशन भी हुआ, दैट व्हिच इज द बेस्ट थिंग व्हिच हैज कम आउट टू बी इन द न्यू यूनिफॉर्म. सो दैट सोवियत हैट उसमें जीती थी. इसलिए कभी आपने सुना होगा सोवियत हैट की इंपॉर्टेंस है, बिकॉज इट वॉन द प्राइज इन दैट कॉम्पिटिशन जिन्होंने न्यू यूनिफॉर्म्स का रखा था. Then Bolshevik party was renamed as Russian Communist Party. अब ये रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रखने का उसका मोटिव ही ये था, रखना ही पड़ा उसको, because yesterday also I told that Lenin was now becoming more and more radical. If you remember, कल भी मैंने ये बात बोली थी. अब पहले भी लेनिन चेंजेस चाहता था, पहले भी लेनिन सोशलिस्ट फॉर्मेशन चाहता था सोसाइटी में, बट नाउ he wanted extreme changes, he wanted sudden changes, he wanted to change the society on large scale completely because he was now getting the power. तो कम्युनिस्ट बहुत पहले, ये जब चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, at that time I remember I told you socialism and communism are almost similar as per the ideology. Ideology दोनों की सेम है, जो सोशलिज्म कहता है वही कम्युनिज्म कहता है. The only thing is कि कम्युनिज्म जब वर्ड यूज किया गया था, at that time they
were a kind of extremist people who came up with the concept of capitalism. सोशलिज्म हम सिंपल प्राइवेट प्रॉपर्टी बोलते रहते थे. कम्युनिज्म में दे केम अप विद द वर्ड ऑफ कैपिटलिज्म एंड दे वर मोर रेडिकल. कम्युनिज्म में चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी एक्सपेक्ट करते हैं. रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट होते हैं. जैसे हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस में 2 पार्ट्स थे, रेडिकल एंड मॉडरेट्स. मॉडरेट्स लोग अपने रिक्वेस्ट में काम करते थे. एक्सट्रीमिस्ट या रेडिकल्स क्विक एक्शंस लेने में बिलीव करते थे. तो सेम वे द डिफरेंस इज देयर. सोशलिज्म a little slow process where they believe that yes, change has to come. Yes, we have to fight for the change, but every time we cannot fight. So now with so many revolutions and with the changing of the thought process of Lenin, he was becoming more radical, more extremist. So the Bolshevik party को नाम को change करके it has now become the Russian Communist Party. Any doubt till here? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है. अब नाउ as I was saying yesterday कि बोल्शेविक्स पावर में तो आ गए. बोल्शेविक्स ने हर जगह कैप्चर करना शुरू कर दिया. दे वर द मोर पावरफुल पीपल. लोग इनसे डरते थे. इनसे इवन बिकॉज दे वर इन पावर. मतलब थोड़ा सा एक होता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं तो लोग इनसे ना रशियन सोसाइटी डरने लगी थी. बट स्टिल बोल्शेविक्स वर हैविंग द ओवर कॉन्फिडेंस. और जब नवंबर में उन्होंने इलेक्शंस किए 1917 नवंबर में आफ्टर द रेवोल्यूशन, व्हेन दे डिड द इलेक्शंस, यहाँ पे बोल्शेविक्स को, लेनिन को बहुत बड़ा झटका लगा. और जहां पे उनको 100% बिलीव था that Bolsheviks would be the winner in the elections, there a different party came up as a majority one. Bolsheviks को majority votes नहीं मिले थे. And yesterday I just mentioned at that time also, just a minute, huh? So yesterday I mentioned कि यहाँ पे वैसे ही NCERT में I don't think it's mentioned, some SR party was there. एक SR party थी. उसमें मतलब that party got the majority vote. और लेनिन की जो ये बोल्शेविक पार्टी थी उसको वोट मेजॉरिटी के नहीं मिले थे. सो इट वाज अ बिग सेटबैक फॉर लेनिन. उसको तो एकदम झटका लगा कि ये कैसे हो गया. व्हेन आई एम इन द पावर, आई हैव गॉट सो मच सपोर्ट फ्रॉम द पीपल एंड देन हाउ वी हैव नॉट कम इन द मेजॉरिटी. अब नहीं आए मेजॉरिटी में. सो व्हाट विल हैपन, ये जो दूसरी पार्टी थी इसने असेंबली फॉर्म की. अब जब इन्होंने असेंबली फॉर्म की, सो अगेन द सेम कंसेप्ट. न्यू गवर्नमेंट आई. उसने जो बोल्शेविक्स के जो मेजर्स थे, जो भी हमने पिछली स्लाइड में पढ़े थे, बोल्शेविक्स ने जो मेजर्स किए थे सोसाइटी में, चेंजेस लेकर आया था. दिस असेंबली सेड दैट वी आर रिजेक्टिंग योर मेजर्स दैट यू हैव डन. क्योंकि अब वो पावर में आ गई. उनको लगा कि अब हम पावर में हैं तो हम अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस रखेंगे. सो पहला झटका लेनिन को लगा व्हेन ही लॉस्ट द इलेक्शन. दूसरा झटका यहाँ पे लगा when assembly says that completely we are rejecting the Bolsheviks measures that you have done and we will be forming our own different set of rules and whatsoever changes we require in the administration or in the political sphere या किसी भी सेंस में. तो लेनिन के लिए ये बहुत बड़ी बात थी. उसको लगा कि मेरे हाथ से तो सारी पावर चली गई, जस्ट बिकॉज आई लॉस्ट द इलेक्शन मेरे हाथ से सारी पावर चली गई. सो उसको बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि तुम मुझे क्या रिजेक्ट करोगे. आई डिसमिस योर असेंबली. स्टिल आई एम पावरफुल है. लोग पहले ही डरते हैं उससे. So he came up with more radical approach. But how he dismissed if he was not the member? Because he was comparatively powerful. SR party जीत जरूर गई थी because of the votes, but powerful leaders नहीं थे वहां पे. जैसे उसने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हटा दिया था. जैसे हिटलर अपनी, हमने डिस्कस किया था, हिटलर पावर की वजह से हमेशा बाकियों के ऊपर रूल कर जाता था. सेम वे लेनिन वाज देयर. उसके पास काफी इस टाइम तक पावर आ चुकी थी. ही वाज आल्सो स्ट्रांग एट दैट टाइम एज कंपेयर टू लेनिन. जो दूसरी पार्टी थी, रूलिंग पार्टी, उसके पास इतना सपोर्ट नहीं था. तो रूलिंग पार्टी को सप्रेस करते हुए ही डिसमिस्ड द असेंबली एंड ही सेड कि ये पूरा जो रशिया में चेंजेस लेकर आया है ये मैं ही लेकर आया.
I have formed I have done so many measures. I have brought the socialism in the country. Then who are you to reject me? I will reject you. I will dismiss your assembly. उसने assembly को dismiss कर दिया और मार्च 1918 में एक और step ले लिया. जर्मनी हमने पहले भी पढ़ा था. Russian people were against Germany. जर्मनी के लोगों से कितनी नफरत करते थे वो. Where we discussed that Tsarina was also from Germany, so they don't want did not like the royal families also. पढ़ा था ना, याद है? We discussed ना कि इन लोगों को जर्मनी से तो बहुत नफरत थी. So what they did, Bolsheviks ने एक पीस जर्मनी के साथ वहां की सिटी में ब्रेस्ट-लिटोव्स्क के में उन्होंने पीस ट्रीटी साइन की और उन्होंने जर्मनी के साथ हाथ मिला लिया. सो अब ये दोनों ही रीजन से जो मेजोरिटी से पार्टी विन होकर आई थी एज वेल एज जिस कंट्री को वो पसंद नहीं करते थे, दोनों ही जगह जब बोल्शेविक्स ने अपनी स्टेप लिए, सो a lot many people started opposing them. लोग इनके अगेंस्ट होना शुरू हो गए, बोल्शेविक्स के अगेंस्ट होना शुरू हो गए. सो जितना सपोर्ट बोल्शेविक्स ने गेन किया था, slowly now due to all these things it was now comparatively it was going down. People started disliking Bolsheviks because of these reasons. And this is important for 1 mark question. Again I'm repeating, ये 1 mark के लिए important question है that how Russia became one party system. अभी हमने देखा कि November 1917 में when the elections were there were several parties. अगर आप इसकी आप Google पे history निकाल के देखोगे, there were several parties who took part. ठीक है, Mensheviks ने भी part लिया था, other parties were also there. So there were I think 5-6 parties were there, those who took part in the election. Then after the election, how the Russia became one party system, काफी सालों तक Russia one party system में हो गया था. I think 9th में अभी आपने party system नहीं पढ़ा होगा. There are 3 types of party system in your 10th class you will study. एक ये होता है जो आपका ये single party system, जहाँ पे एक single party को allow होती है. Elections would be held, but this particular single party contestants would be there. उन्हीं में से कोई ना कोई जीतेगा. Then there is a dual party system, जहाँ पे सिर्फ 2 ही पार्टीज अलाउड होती है, और एक होता है हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम, जैसे हमारा इंडिया में जितनी मर्जी बना लो. ठीक है, तो अभी तो फिलहाल रशिया में भी मल्टी पार्टी सिस्टम है, बट एट दैट टाइम आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन देयर वाज अ टाइम वेयर कुछ सालों तक रशिया में वन पार्टी सिस्टम रहा और ओनली बोल्शेविक्स वर देयर. सिर्फ ये बोल्शेविक्स थे जो इलेक्शंस में कंटेस्ट करते थे, क्योंकि लोग इनसे डरने लगे थे, क्योंकि लोग इनको ज्यादा पावरफुल मानते थे. जो डिफरेंट बाकी पार्टीज थी, those who took part in the elections of 1917, उन्होंने भी नेक्स्ट इलेक्शन से पार्ट लेना बंद कर दिया. सो और ये जो ऑल रशियन कांग्रेस थी, जहां पे 500 सोवियत से आए थे, रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, उसमें भी सारे मेंबर्स अब बोल्शेविक्स के भर गए थे. और इन्होंने बोल्शेविक्स ने क्या किया, ये जो ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत है, इसको बोला ये हमारी पार्लियामेंट है, और जितनी भी ट्रेड यूनियंस है उसको भी उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया. सो है व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, पार्लियामेंट अपने कंट्रोल में, वन पार्टी सिस्टम, और ट्रेड यूनियंस को लेने का मतलब ये है politically also they took the charge of Russia, economically also they took the charge of Russia. So politically, economically, Bolsheviks, Lenin took the complete charge of Russia, and this is how, because of their fear, other parties stopped contesting in the elections, and Russia became one party state for several years. Again I'm repeating, ये 1 mark के लिए important question है. ये स्लाइड्स में डाल दूंगी उसमें, you can take from there. Now Lenin was in power, so lack of individual freedom was there under the Bolsheviks. अब इन्होंने क्या किया था, जैसे हमने इसमें पढ़ा था हिटलर के केस में, he formed secret police, remember? सीक्रेट पुलिस का पढ़ा था ना हमने कि हिटलर ने सीक्रेट पुलिस बना दी थी, डिफरेंट पुलिस बना दी थी. ही वांटेड टू कीप अ चेक ऑन ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. कुछ याद है कि नहीं? यस मैम, याद है.
सेम वे लेनिन डिड, क्योंकि लेनिन भी बहुत शक्की इंसान था, हमने पहले भी देखा था कि उसको पहले भी शक हो गया था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट could establish the dictatorship, तो वो हर इंसान पे वो भी शक करता था. So what he did, he also formed the secret police, और हर उस इंसान पे नजर रखी जाती थी कि कहीं कोई बोल्शेविक्स को क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहा है. If he found anyone doing it, so those kind of people, those who were criticizing the Bolsheviks, they were punished by the secret police, punished by the Lenin. और ये जो नाम दिए हुए हैं ये सीक्रेट पुलिस के नाम है, इसको अलग अलग नाम दिया गया, बार बार चेंज कर दिया नाम, कभी उसको चेका बोला, कभी उसको ओजीपीयू बोला, कभी एनकेवीटी बोला. Not so important, it's all together, it was the secret police, the different names of the secret police. Then many young writers and artists were disappointed due to the censorship law. अब खाली उसने पुलिस नहीं बनाई थी, पुलिस तो बनाई यहाँ पे, लोगों पे नजर रखी, पनिशमेंट्स दी गई those who were speaking against the Bolsheviks. उसके साथ साथ सेंसरशिप लॉ, जो हमारा हमेशा एक ह्यूमन राइट को दबाने वाला लॉ बोला जाता है. सेंसर वाज देयर, ना आप बोल्शेविक्स के अगेंस्ट बोलोगे, ना आप बोल्शेविक्स के अगेंस्ट कुछ सुनोगे, ना लिखोगे, ना देखोगे. सो एवरी जो आपके जैसे पोएट्स थे, राइटर्स थे, आर्टिस्ट थे, ये क्या करते थे, ये अपनी चीज, अपने थॉट प्रोसेस से, अपने आर्ट के थ्रू अपनी बात को सामने रखते थे. तो इन आर्टिस्ट्स को ये लगा था कि अगर सोशलिज्म की हम बात कर रहे हैं, हम लिबरल थॉट प्रोसेस की बात कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग हमने रशिया में की थी सोच की. सो दे थॉट कि इफ लेनिन विल कम, इफ बोल्शेविक्स विल कम, दे विल बी कमिंग विद द सोशलिज्म आइडियाज एंड दे विल बी द लिबरल आइडिया. सबको छूट होगी, सबको फ्रीडम होगी, फ्रीडम ऑफ थॉट प्रोसेस वुड बी देयर. लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, जब वो पावर में आए, देयर वाज द सेंसरशिप लॉ व्हिच वाज बीइंग पुट ऑन द पीपल. And due to this, the artists, the writers, the poets, they all were against. They were very disappointed with the Bolsheviks and the Lenin. क्योंकि सेंसरशिप ऐसी चीज होती है जिससे आप बिल्कुल आपकी आवाज दब जाती है. So that is always considered to be not to be so good. That now civil war background क्या था सिविल वॉर का? बोल्शेविक्स ऑर्डर लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन. बोल्शेविक्स ने जब पावर में आए थे, उन्होंने बोला था कि जो भी हमारी लैंड है, जो हमने पहले भी देखा था कि हम लैंड को पेजेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ठीक है, इससे क्या हुआ कि दो सोल्जर्स विच दोज लाइक पेजेंट्स हु वर बीइंग फोर्सफुली सेंट टू द आर्मी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये लड़ाई झगड़ा और हम नहीं करेंगे, अब हमें लैंड मिल जाएगी, बिकॉज दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द लैंड. सो दे वांटेड टू गो बैक होम एंड वांटेड टू बी इन द मतलब वांटेड टू वर्क एज अ पेजेंट नाउ इंस्टेड ऑफ वर्किंग एज अ सोल्जर. सो आर्मी श्रिंक होने शुरू हो गई, आर्मी धीरे धीरे छोटी होनी शुरू हो गई. So non-Bolshevik socialists, liberals and supporters of autocracy condemned the Bolsheviks uprising. जो भी आपके जो बोल्शेविक्स के सपोर्टर्स नहीं थे, जो लिबरल थॉट प्रोसेस के लोग थे, जो ऑटोक्रेसी के सपोर्टर्स थे, अभी भी ऐसे हर सोसाइटी में कुछ कुछ लोग होते हैं ना जो पुराने विचारों के स्टिल वो रहते हैं, तो जो लोग ऑटोक्रेसी को ही अभी भी सपोर्ट कर रहे थे, इन्होंने सबने बोल्शेविक्स को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया. दो देयर वाज द सेंसरशिप, बट दे केम अप एज एन, जब जहां पे भी सेंसरशिप हो जाती है ना, फिर वो रिवोल्ट ही निकल के आता है. अगर आपको बोलने के लिए बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा तो लोग फिर रेवोल्यूशन पे आ जाते हैं. सो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन वाज देयर इन द सिविल वॉर, मतलब बिफोर द सिविल वॉर ब्रोक अप. सो अब सोसाइटी में तीन तरह के ग्रुप्स बन गए थे. अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर. When Bolsheviks came in the power, when Lenin was in the power, when he had the censorship law, when he formed the secret society, secret police, when he started redistributing the land, he made the nationalized banks and industries and rest everything which they have done. At that time in the society there were three groups. एक जिनको बोलते थे रेड्स. ठीक है, रेड्स मतलब यहाँ पे रेड्स which were Bolsheviks. कैसे याद रखेंगे, क्योंकि हमने बोला कि लेनिन एंड बोल्शेविक्स दे वर द people were having the radical approach, जो
अपनी रेडिकल अप्रोच के लिए माने जाते थे। तो रेडिकल अप्रोच, रेड से हम उसको याद रखते हैं, जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे, मोस्टली दीज वर पेजेंट्स। ये पेजेंट्स की बात कर रहे हैं आप, यहाँ पे प्लीज मार्क कर लेना। so, पेजेंट्स को यहाँ पे ये ग्रीन से माना जाता था, इसको भी याद रखना आसान है, पेजेंट और ग्रीन समवेयर दे आर रिलेटेड। एंड प्रोजारिस्ट, जो अभी भी कॉन्जर्वेटिव आइडियाज में बिलीव करते थे, अभी भी ऑटोक्रेसी में बिलीव करते थे, दे वर टर्म्ड एज व्हाइट्स। So 3 different sections of society, 3 groups were formed in the society. One were known to be the red, those who supported the Bolsheviks or who were the Bolsheviks. Another one who were the peasants basically, and pro-czarist were the whites. So अब ये 3 सेक्शन बन गए थे, और ये 3 सेक्शन ऑफ सोसाइटी, 3 ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी kept fighting with each other. इन्होंने एक दूसरे से लड़ाई झगड़े सब शुरू कर दिए, इनको एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, which led to the civil war. Now here, Reds organized troops to fight the Bolsheviks. The Greens and Whites controlled most of Russian Empire. देखो यहाँ पे ये जो चीजें दी हुई हैं, ये आपके आंसर के लिए याद करने के लिए, बट इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो इट वाज बेसिकली, ये जो दोनों पॉइंट्स है, दे जस्ट वांटेड टू मेंशन है, इसको आप ऐसे नहीं भी लिखोगे तो इट वाज जस्ट लाइक दैट all these 3 different groups of the society, they were fighting with each other, they were the non-supporters of each other, they did not like at all each other. उनकी पॉलिसीज, उनके थॉट प्रोसेस, उनकी अपराइजिंग, किसी भी चीज को वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, एंड दे स्टार्टेड फाइटिंग अमंग देमसेल्फ। इसके साथ साथ दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज नाउ द पीपल, द नॉन रशियन पीपल, इनको क्या लगा, जैसे जो बड़ी बड़ी कंट्रीज थी, फ्रांस वाज देयर, अमेरिका वाज देयर, ब्रिटेन वाज देयर, जापान वाज देयर, इनको क्या लगा, इनको ये लगा कि ये जो रशिया में सोशलिज्म फैल रहा है, मेनली दे हैड द प्रॉब्लम विद सोशलिज्म, वो सोशलिज्म को अपनी कंट्री में आने नहीं देना चाहते थे, वो ये नहीं चाहते थे दैट पीपल शुड स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द सोशलिज्म इन देयर कंट्री। सो इन ये they were also completely getting against the socialism. तो ये सारे आपस में, कुछ लोग सोशलिज्म के लिए लड़ रहे थे, कुछ नॉन सोशलिज्म के लिए लड़ रहे थे, कुछ नॉन रशियंस उसमें ऐड हो गए थे, वो सोशलिज्म के आइडिया को स्प्रेड नहीं होने देना चाहते थे। तो ये जो सारे के सारे लोग एक दूसरे के साथ सोसाइटी में लड़ाई झगड़ा जब शुरू कर दिया, दैट इज टर्म टू बी द सिविल वॉर। सो अ सिविल वॉर टुक प्लेस बिटवीन रेड आर्मी एंड व्हाइट आर्मी, क्योंकि पेजेंट्स का तो ऐसा था, जो ग्रीन थे ना, वो उनका ये था, वो अपनी मूवमेंट चला के ही रखते थे। हम रशिया के स्टार्टिंग से ये बात बोल रहे हैं, पेजेंट्स को जहां पे उनके लिए कुछ गलत लगता था, वो वहां पे अपनी रेवोल्यूशन हमेशा ऑन ही रखते थे। तो वो तो लड़ ही रहे थे, बट जो मेजर कंफ्लिक्ट जो हुआ, दैट वाज बिटवीन द रेड एंड व्हाइट आर्मी, बिटवीन द बोल्शेविक्स एंड द प्रो-ज़ारिस्ट पीपल, दोज हु वर इन फेवर ऑफ द ज़ार rather than of the socialism. So इनकी बीच में लड़ाई झगड़ा, सोसाइटी में इतना लड़ाई झगड़ा हुआ, लूट मार हो गई, बैंडिट्री वेयर जो आप कहते हो, जहाँ एक्सटॉर्शन, किसी को किडनैप कर लिया, किसी को क्रिमिनल वायलेंस के साथ ट्रीट किया गया, एवरी टाइप ऑफ क्राइम एंड वायलेंस एंड फेमाइन। अब वो आना ही था फेमाइन, बिकॉज एवरी पर्सन वाज इन द वॉर, ना कोई काम करने की सोच रहा था, ना इंडस्ट्रीज में कुछ काम हो रहा था, ना पेजेंट्स कुछ काम कर रहे थे। सो इट वाज अ काइंड ऑफ a very bad situation at that time, where all the complete section of society, they started fighting with each other along with the Russians. The other bigger nations also was fighting there, because they wanted to suppress the concept of socialism in Russia, so that it should not be spreading up in their own country. So that kind of situation was there in the civil war. इसके साथ साथ सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, अगर आपको याद है, प्राइवेट प्रॉपर्टी छीन कर
किसको दे दी थी? पेजेंट्स को। प्राइवेट प्रॉपर्टी छीन के किसको दे रहे थे? लेनिन ने क्या बोला था कि नोबल पीपल से ले लो प्राइवेट प्रॉपर्टी और उसको हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अमंग द पेजेंट्स। यस मैम। तो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर्स थे, जो पहले वाले प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर्स थे, जिनको प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट पसंद था बिकॉज उनसे छीनी गई थी लैंड, वो उन्होंने पेजेंट्स को मारना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा ये तो हमारी लैंड छीन छीन के इनको दे दी है, उन्होंने इनके साथ मारधाड़ शुरू कर दी। एंड सच अ सिचुएशन हैपेंड इन रशिया कि लोगों को जो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई सूझ रही थी, सिर्फ और सिर्फ बोल्शेविक्स को हराने का एक कंसेप्ट चल रहा था सोसाइटी में, एंड एवरीवन वाज टोटली नॉट इंडल्ज इन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो जितनी मारा जा सकता है, किसी को मार दो, किसी को इंजर कर दो, लड़ो, उसके आइडियाज को दबा दो, इसके आइडियाज को दबा दो। दैट काइंड ऑफ सिचुएशन वाज देयर इन द रशिया ड्यूरिंग द सिविल वॉर ओवर देयर। लेकिन इस सिविल वॉर को दबाते हुए अगेन जो बोल्शेविक्स थे, स्ट्रॉन्ग बहुत थे ये, बोल्शेविक्स फिर से जीत गए यहाँ पे। ठीक है, कैसे जीत गए उसका जो यहाँ पे ये मेजर रीजन मेंशन है, दो तरह के लोगों को इसका सपोर्ट था बोल्शेविक्स को। वन वाज नॉन रशियन नेशनलिस्ट, जो अभी हमने बोला, वेदर इट वाज द फ्रांस, इट वाज अदर नेशंस जो सोशलिज्म नहीं लाना चाहते थे। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या था, ये कहते थे कि सोशलिज्म ना स्प्रेड हो। अब इन्होंने क्योंकि बोल्शेविक्स को सिविल वॉर को दबाने में, कंट्रोल करने में हेल्प की थी, सो जस्ट रिमेंबर कि इन्होंने बहुत चालाकी से सोशलिज्म, जो लेनिन स्टार्टिंग से सोशलिज्म 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 कम्युनिज्म बोल रहा था, उस सोशलिज्म को डाइवर्ट कर दिया। लेनिन की हेल्प करते हुए दे डाइवर्टेड द कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म, और जो सोशलिज्म लेनिन स्टार्टिंग से बोल रहा था वो उससे डाइवर्ट हो गया, और सोशलिज्म का मीनिंग एक्चुअल सोशलिज्म के आइडियोलॉजी से हट गया, जो उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्कर्स का कम्युनिटी वर्क, इक्वल ओनरशिप, कम्युनिटी ओनरशिप, इससे थोड़ा अब सोशलिज्म डाइवर्ट हो गया, क्योंकि नॉन रशियन नेशनलिस्ट ने लेनिन की सपोर्ट की थी, बोल्शेविक्स की सपोर्ट की थी टू गेट कंट्रोल ओवर द रशियन एम्पायर। एंड मोर ओवर द मुस्लिम जेडिसिस्ट क्या थे, मैंने पहले भी बताया था आपको, मुस्लिम जेडिसिस्ट Muslim jihadists were there, those who believed कि अगर सोशलिज्म आता है तो एक लिबरल थॉट प्रोसेस आएगा मुस्लिम कल्चर में भी। इफ यू रिमेम्बर, ये हमने पहले डिस्कस किया था, वहां मैंने मार्क भी बोला था, कर लो इसको 1 मार्क के लिए, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु वर द मुस्लिम जेडिसिस? दे वर द मुस्लिम रिफॉर्मर्स, जिनको ये लगता था कि लेनिन के आने से या चेंजेस आने से, सोसाइटी में लिबरल थॉट प्रोसेस आने से, उनके मुस्लिम लॉज, उनके मुस्लिम कल्चर में भी एक ओपननेस आएगी। दे वर द मुस्लिम जेडिसिस। तो इन दोनों ने सपोर्ट किया, और लेनिन ने वापस से सिविल वॉर को दबाते हुए रशिया को फिर से अपने कंट्रोल में ले लिया। एंड नॉन रशियन नेशनलिस्ट डाइवर्टेड फ्रॉम सोशलिज्म, अब ये जो मैंने अभी बोला था, और दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। दे मेंशन सेंट्रल एशिया में एक जगह थी खेबा, वहां पे बोल्शेविक कॉलोनिस्ट मैस्कर्ड लोकल नेशनलिज्म इन द नेम ऑफ सोशलिज्म। अब सोशलिज्म के साथ साथ ये मैस्करिंग और लड़ाई झगड़ा, दूसरों को दबाना, कंट्रोल करना, ये सब स्टार्ट हो गया था। दो एक्चुअल सोशलिज्म में कभी भी इस बात को नहीं बोला गया that people should be suppressed in any form. But now, because the non-Rashtriya nationalists, they diverted the concept of socialism now. So these kind of situations started arising in the society. This is just one example. There were many like that. And अब यहाँ पे जब रशिया को लेनिन ने अपने कंट्रोल में ले लिया, तो ना लेनिन ने सोचा कि अब रशिया को अपने हाथ में ले लिया जाए थोड़ा पूरी तरह से। काफी चीजें यहाँ पे, इतने लोग मर चुके हैं, सब खराब हो चुका है, उसको शायद कुछ चेंज आएगा। उसने पूरे रशिया को एक यूनाइट करके ही फॉर्म द यूएसएसआर इन 1922। बट यहाँ पे भी पूरा प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ। अब नाउ लास्ट स्मॉल पार्ट इज लेफ्ट, आई थिंक 15-20 मिनट्स का।